So in the previous class, we discussed about the ray diagrams associated with the concave mirror, where the various positions of the objects and the images formed related to them were displayed. Let us have a look at it. These are the 6 different positions of the object in front of a concave mirror. Number 1, the object is at infinity. The image is formed exactly at F. प्रिंसिपल फोकस पर इमेज फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज. A real inverted and point size image will be formed. Then when the object is placed on the principal axis beyond C, then the image is shifted towards C, formed between C and F, and it is real inverted and diminished. In third situation, the object is further closer to the mirror exactly at C, center of curvature. Then image also moves away from the mirror and exactly formed at center of curvature. The size of the image and object are the same in this case. Fourth case, when the object is placed between C and P, image will move further away from the mirror. It will be enlarged now. It will be formed on the principal axis beyond C. And when the object is shifted to F, then the image will form at infinity, real, inverted and highly enlarged. And finally, when the object is placed between F and P, the first and the only virtual and erect image formed by the concave mirror, which is enlarged. The reflected rays are not intersecting actually in front of the mirror, so that is why we can see an apparent intersection or an intersection behind the mirror. This is the apparent intersection of the reflected rays in which we saw them. We see these reflected rays coming from a point behind the mirror. Actually, these reflected rays are coming from the points which are situated on the mirror, but they appear to be coming from a point behind the mirror, a common point. So that means the image is formed behind the mirror, that is virtual, erect and enlarged. ये 6 डायग्राम हमारे बने हैं कॉनकेव मिरर के लिए. अभी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा रहता है. एक मिनट. कॉन्वेक्स मिरर ऐसा हम शो कर सकते हैं. तो इसका भी एक प्रिंसिपल एक्सेस हम ड्रॉ कर लें. प्रिंसिपल एक्सेस इसका, यहाँ पर इसका पोल. अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, मतलब ये इस पर आने वाली स्ट्रेट रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इन रेज ऑफ लाइट को अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करता है लाइक दिस. And then they appear to be originating from a common point behind the mirror. अगर हम देखें इसके पीछे तो we can project it like this. We can see a common point. This is a common point F behind the mirror. F यानी प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर है. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, सच एज द डिस्टेंस बिटवीन P and F, that is focal length, is half as compared to the distance between P and C, that is radius of curvature. ठीक है. तो यहाँ पर केवल 2 ही केसेस हैं. यहाँ पे केवल 2 ही केसेस की बात होगी. जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर में कहा था कि वहाँ तो 6 केसेस थे. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी,
फिर ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सी होता है, सी पर होता है, सी और एफ के बीच में होता है, एफ पर होता है और एफ और पी के बीच में होता है। तो 5 बार वो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होता है अलग अलग सिचुएशंस पे। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पर भी एक ही गुंजाइश है, कहीं भी हो, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पे एफ और सी जैसे कोई पॉइंट्स नहीं है, इस वजह से आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें, इमेज जो होगी वो बिहाइंड द मिरर पी और एफ के बीच में बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। ये वाला मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि सिर्फ बिहाइंड द मिरर इमेज बनाता है। दिस कैन नॉट फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन। इसकी इमेज को कभी भी हम किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता ही नहीं है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि जो इसका जो इमेज बनेगा उस इमेज का रिलेटिव साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हमेशा छोटा होगा, ना कभी बराबर हो सकता है ना कभी बड़ा हो सकता है, छोटा ही होता है। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना है या ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है, ये दो ही ऑप्शन हमारे पास रह जाते हैं। अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करें और इस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं, तो सबसे पहले हम ऑल पॉसिबल रिप्रेजेंटेटिव रेज देख लेते हैं, हाँ, कि किस तरह की रिप्रेजेंटेटिव रेज इस पर आने वाली हैं। तो पहली तो रिप्रेजेंटेटिव रे वो है जो हमारे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी लाइक दिस, एंड इट विल मूव अवे after getting reflected in such a way that it appears to be originating from a point behind the mirror, that is F. दूसरी बात, जो ये फर्स्ट हो गई, दूसरी ऐसी जो कि इस तरह से आए कि F में जाती हुई दिख रही हो। हाँ, हम कोई दूसरी ले लेते हैं इस वाली को छोड़ के, कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आए कि इट अपीयर्स टू बी ओरिजिनेट एंटरिंग इनटू एफ। हाँ, ऐसा लगे कि ये एफ में जा रही है, ठीक, ये एफ में जाती हुई पता चल रही है हमको, मतलब इसको हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करें तो इट अपीयर्स टू बी एंटरिंग इनटू एफ। ऐसी रे ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस जाती है। हाँ, इधर से आई इधर चली गई, इधर से आई थी तो फिर अवे चली गई थी, और ये अगर एफ में आती हुई दिख रही है, ये एफ में से जाती हुई दिख रही थी पहले वाली, इन पे नंबर डाल देते हैं। ये जो पहले हमने लिखी थी ये 1 है, और जो सेकंड हमारी है वो ये है 2। तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई, कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्लेक्टेड रे एफ में से ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी। अगर इंसिडेंट रे एफ में जाती हुई दिख रही है, एफ को इंटरसेक्ट करती हुई दिखती है अपरेंटली बिहाइंड द मिरर, तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी चीज़, आपको यहाँ पे एक सी बना लेना चाहिए बिहाइंड द मिरर। अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी ऐसे एंगल से आती है कि वो हमें सी में एंटर करती हुई दिखाई दे, ऐसा लगे कि वो सी में चली जाएगी, ऐसा लगे कि वो सी में जाके मिल जाएगी, तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी रास्ते पर वापस चली जाती है जिस रास्ते पे आई थी, अगर इस सी में जाती हुई दिख रही है तो। ठीक है, हमने थोड़ा सा थिकर लाइन जो थी वो ऊपर बना दी है, तो उसको हम हटा देंगे तो भी चलेगा, है ना। और यहाँ पे एक और ड्रॉ कर देते हैं, छोटी लाइन ये बना देते हैं, ऐसे बना दिया हमने ना, कि ऐसा लगेगा कि ये सी में आ रही है, एक्चुअली नहीं आ रही है, एक्चुअली तो यहीं से टकराती है, वापस चली जाती है, तो इसी रास्ते वापस चली जाती है।
इसको सीधी करने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो दिस इज द इंसिडेंट रे नंबर 3। ये 3 रिप्रेजेंटेटिव रे तो हो गई, और चौथी वही जो कि कॉमन है, कॉनकेव में भी था कि पोल से आके टकराए। हाँ, दिस इज पोल। तो पोल से आके अगर टकराएगी तो फिर फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कहीं से भी आके आप यहाँ से बना लें ऐसे, यहाँ पे इंसिडेंट, हाँ, पोल से टकराई है तो वो पोल से निकल के इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे, ये और ये बराबर। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। इन 4 में से कोई सी भी 2 रेज लेकर के आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम बना सकते हो फॉर द वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं हम, पहला केस तो यही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, then the rays of light which are coming parallel to each other, parallel to principal axis, after getting reflected appear to be originating from F, or we can also say that they appear to be intersecting at F. तो F पर अगर apparent intersection हो रहा है तो F पर virtual, erect and point size image बन रही है। इस पॉइंट साइज इमेज को हम हाईली डिमिनिश्ड इमेज भी बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी इमेज भी बोलते हैं। फिर देखें कि दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये हमने मिरर बनाया हमारा, और इस पे हम बना लेते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर P है, दिस इज पोल, यहाँ पे एक जगह F बना लेते हैं, यहाँ पे उतनी डिस्टेंस पे C बना देते हैं, ऐसा है। तो ऑब्जेक्ट रखा है इन फ्रंट ऑफ इट, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहला रिप्रेजेंटेटिव रे तो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले ही लेंगे, जो कि F में से जाता हुआ ऐसा लगेगा कि F में से गया है, हाँ, लाइक दिस। दिस रिफ्लेक्टेड रे विल अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम F बिहाइंड द मिरर। दूसरी रे हम लेंगे वो जो कि पोल से टकराई थी, है ना, इस तरह से पोल से आके टकराई थी इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली आएगी, यूं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। अब इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसको अगर बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो देयर वुड बी एन apparent इंटरसेक्शन बिहाइंड द मिरर, हाँ, एक apparent इंटरसेक्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे मतलब एक वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। इससे छोटी है, दिख ही रही है, इसके नीचे जो भी होगा वो इससे छोटा होगा। तो इमेज का टाइप हो गया वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होती है, एंड दिस इज फॉर्म बिटवीन P एंड F। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बोल सकते हो आप, छोटी स्मॉल बोल सकते हो, डिमिनिश्ड बोल सकते हो। ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, और कोई इमेज ये बना भी नहीं सकता।
कॉन्वेक्स मिरर के साथ में ये चीज़ आप क्लियरली कह सकते हो कि ये कभी भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी रियल इमेज कभी बनाएगा ही नहीं। और इसकी इमेज अगर सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ही होगी तो आप इसको कॉनकेव से कंपेयर कर सकते हो। कॉनकेव भी वर्चुअल इमेज बनाता था एक केस में, सिर्फ एक केस में कॉनकेव मिरर ने भी वर्चुअल इमेज बनाई थी, देखो इस केस में। लेकिन इसकी वर्चुअल इमेज इनलार्ज थी, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कैन यू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द टू डायग्राम्स? ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये कभी भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज नहीं बनाता, मतलब कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, रियल इमेज बनती नहीं है। हाँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं बनाता मतलब रियल इमेज नहीं बनाता, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज ये बना ही नहीं सकता। केवल ये दो ही केसेस हैं। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे तो इमेज भी आगे आएगी, मतलब मिरर के पास आएगी। बहुत पास ले आओगे तो भी वो भी बहुत पास आ जाएगी। और पास जो आएगी, जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे उसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा इस स्लोप के हिसाब से। और फाइनली हम देखेंगे कि एक मैक्सिमम लिमिट है जब ऑब्जेक्ट उसके सामने उसके पास तक आ सकता है, उसके बाद तो फिर वो उससे करीब तो जा ही नहीं सकता। जब वो सबसे पास खड़ा हुआ है तो भी इमेज का साइज़ जो होगा, मैक्सिमम साइज़ इमेज का, वो तो भी ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा ही होगा। तो ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, कभी भी सेम साइज़ इमेज बना ही नहीं सकता। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कहाँ पे काम आएगा? बहुत सारे यूजेस हैं इनके। सबसे पॉपुलर इमेज तो है कि कार का रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार, या व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, कार क्या मतलब आपके टू व्हीलर में भी तो यही लगता है ना। इसमें भी जो इमेज होती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। चेक करना आप कभी किसी व्हीकल में, रियर व्यू मिरर व्हीकल का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मिरर्स, हाँ सिक्योरिटी मिरर्स आपने देखे होंगे, एटीएम्स में लगे होते हैं, मॉल्स में लगे होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लगे होते हैं। और इनका पर्पस ये होता है कि द पर्सन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द प्लेस, वो एक ही जगह पर बैठ कर के सब लोगों को, सारी शेल्फ्स को या सारे प्रीमाइसेस को देख सके। हाँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डिस्टेंस रखा हो, इमेज उसकी इनसाइड द मिरर ही बनती है। ये अलग बात है कि डिस्टेंस बढ़ता है तो बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन बनती हमेशा इनसाइड द मिरर है। देखो, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट उसके सामने कहीं रखा होगा या तो बहुत ही दूर रखा होगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। हाँ, इन बोथ द केसेस इमेज अंदर बन रही है। इमेज कभी भी f के बियॉन्ड नहीं बनती है, f और p के बीच में ही बनती है ना। इसके बीच में ही बनती है और कहीं बन ही नहीं सकती, फ्रंट में बन नहीं सकती, और f के बियॉन्ड, f और c के बीच में या बियॉन्ड c नहीं बन सकती कभी भी। तो इसका केस बिल्कुल ही सिंपल है। और उसी हिसाब से इसका यूज़ समझना आसान है कि सिक्योरिटी मिरर है, ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर रखा है, रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार है, कितनी भी दूर पीछे कोई ट्रक आ रहा है आपको वो दिखेगा, उसके अंदर पास आएगा तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन तो भी इमेज डिमिनिश्ड होगी। रोड इंटरसेक्शन पे भी सिक्योरिटी के काम आता है। क्या मतलब? रोड इंटरसेक्शन जैसे कि हिल्स पे होता है। जब आप किसी हिल स्टेशन पर ड्राइव करते हो तो आपको ये पता चला होगा ज़रूर, आप मतलब किसी ऐसे व्हीकल में बैठे हो जिसमें हिल स्टेशन पे हम चल रहे हैं, तो रोड जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली मुड़ती रहती है ना, चक्कर मारती रहती है। पहाड़ है बड़ा ऊंचा, और कई बार ऐसा होता है कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने वाले व्हीकल्स आमने सामने हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं होती है उनके,
और एक्सीडेंट होता होता बचता है, या कई बार तो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो ही जाता है। ऐसे में अगर यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर रखा हो, ये पिंक कलर से मैंने कॉनकेव मिरर का एक सिंबल बनाया है सिंबॉलिकली, तो यहाँ से आने वाले व्हीकल को बहुत पहले इस मिरर में इधर से जो भी आ रहा है वो दिख जाएगा, और फिर बाय द टाइम दे विल कम क्लोज दे कैन चेंज देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड स्लो कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। दे गेट सफिशिएंट टाइम बिफोर दे कम इन कॉन्टैक्ट और कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, और फिर अगर अचानक एक दूसरे को सामने देख करके और फिर उसके बाद ब्रेक्स नहीं लगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। इसी तरह का यूज़ इसका है कि जब इनसाइड द मॉल्स, अपने मॉल्स में भी देखा होगा, खास करके ऐसे मॉल्स जिनमें सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द व्हीकल्स नहीं होता पार्किंग से, कॉमन एंट्री एंड एग्जिट होता है, और मल्टी स्टोरी मॉल्स हैं, तो एक ही रास्ते से जो लोग उतर रहे हैं उसी रास्ते से दूसरे लोग आ भी रहे हैं, तो वहाँ पे हर फ्लोर के बाद आपको ऐसे किसी मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बड़े शार्प टर्न लेना पड़ते हैं और व्हीकल्स आमने सामने आने की कंडीशन में नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इनके यूजेज हैं। कभी कभी ये आजकल तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्या पता कहीं ना कहीं पड़ती हो कि जो रोड लाइट पे जो रोड लाइट जो होती है, बल्ब्स जो होते हैं, पुराने टाइम के बल्ब्स जो होते थे, वो काफ़ी कम रेंज में, एक तो लाइट बहुत ज़्यादा होती नहीं है उनकी, और बहुत कम रेंज में वो सड़क के ऊपर अपना लाइट फेंक पाते हैं। तो पीछे अगर इसके एक इस तरह का डाइवर्जिंग मिरर लगा दिया जाए तो इनसे बैकवर्ड जाने वाली रेस को वो ज़्यादा दूर दूर तक फैला देता है। इसका सरफेस ब्रॉड है। ये रियर व्यू मिरर बनाने के पीछे भी एक बड़ा रीज़न ये है कि एक पैनोरामिक व्यू देता है। हाँ, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज तो बनाता ही है, साथ में पैनोरामिक व्यू देता है, यानी वाइडर व्यू, ज़्यादा आगे की तरफ बल्ज्ड आउट है, इसलिए ज़्यादा वाइडर व्यू देता है। तो ये सब यूजेस आपको याद रह जाएंगे अगर आप रे डायग्राम्स रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अब बात आती है, जब ये सब तो आपने रे डायग्राम्स तो देख लिए, टोटल 8 रे डायग्राम्स आपने देखे, 6 रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के हैं, 2 रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स मिरर के हैं। अब हम आगे क्या समझना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? वी वांट टू वॉच द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस, रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल पार्ट, कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती है फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? एक तो है एच डैश विच इज़ इमेज साइज या इमेज हाइट। एच इज ऑब्जेक्ट साइज या ऑब्जेक्ट हाइट। एफ इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फिर जो V, दैट इज इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज का पोजीशन, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस फिजिकल क्वांटिटी। दो तरह से इनके रिलेशन हम देखते हैं। एक तो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या बताता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो मिरर फॉर्मूला है जो डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी एफ, वी एंड यू के आपस में रिलेशनशिप को बताता है। दूसरा, द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन।
मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय अ मिरर, वो इमेज इन कंपैरिजन विद ऑब्जेक्ट बड़ी है, छोटी है या मैग्नीफाइड है, यानी बड़ी है, छोटी है या सेम साइज़ है, बड़ी है या मैग्नीफाइड है या इनलार्ज्ड है, तो ऐसी कंडीशन में मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। अगर सेम साइज़ है तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 होगा, और अगर डिमिनिश्ड इमेज बनी है तो फिर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कम होगा, कम मतलब लेस देन 1 होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। क्यों होगा ऐसा देखें, h डैश अपॉन h होता है मैग्नीफिकेशन, इसको माइनस v अपॉन u भी कह सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 देन सेम साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड। हाँ, वाई? क्योंकि h डैश और h अगर बराबर होंगे, इफ h डैश इज इक्वल टू h देन h डैश अपॉन h वुड बी 1। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन 1 कब हुआ? जब ये दोनों बराबर हैं, सेम साइज की इमेज बन रही है मतलब। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ h डैश इज ग्रेटर देन h। मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा कब होगा? जब h डैश h से बड़ा होगा। Obviously when h dash is greater than h, that means in this formula, in this ratio, the numerator is greater than denominator, तो फिर वैल्यू जो होगा वो 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रेटर देन 1 ही आएगा, चाहे कुछ भी वैल्यू है ग्रेटर देन 1 ही आएगा। और द थर्ड सिचुएशन इज when magnification is less than 1, हाँ, उस कंडीशन में h डैश जो होता है वो h से छोटा है, यानी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। यहाँ जो इमेज बोल रहे हैं उसको तो हम इनलार्ज्ड बोल रहे हैं। हाँ, कॉन्केव मिरर के केस में सेम साइज, इनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, सीधी सी बात है, h डैश अपॉन h होता है मैग्निफिकेशन। If h dash is smaller, that means the number in the numerator is smaller as compared to denominator, and then it will be lesser than 1. 0 point something वैल्यू आएगा इसका, ठीक है ना, 0 point something वैल्यू इसका आएगा। तो ये तो दो बातें हो गई, एक तो हो गया मिरर फॉर्मूला, एक हो गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। इसमें इन पांचों फिजिकल क्वांटिटीज जिनके नाम हमने यहाँ लिखे थे, इन पांचों का इंटर रिलेशनशिप हमको पता चल गया है ना। बस ये बात आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल करने से पहले। लेकिन इससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल से भी मतलब मैग्नीट्यूड्स से भी ज़्यादा या फॉर्मूला से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, यानी कि हम जब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखेंगे कि व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमको साइन भी लिखना पड़ेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। उसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस आर बेसिकली द रूल्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। जैसे पहली बात हम कहते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शैल ऑलवेज बी मेजर्ड be measured
from the pole. All the distances parallel to principal axis shall always be measured from the P, from the pole. पहली बात. दूसरी बात, object shall be placed towards लेफ्ट हैंड साइड ओनली, यानी ऑब्जेक्ट को और कहीं नहीं रख सकते, आपको लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द मिरर, यानी कि ये अगर गया, यही बना लेते हैं, मतलब ये अगर मिरर है तो ऑब्जेक्ट को इधर ही रख सकते हैं, इधर नहीं रख सकते. हाँ, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ही रखना होगा, ऑब्जेक्ट को कभी भी राइट हैंड साइड नहीं रख सकते. फिर तीसरी बात, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी F, V and U. These three are the distances which are called as parallel to principal axis. So all the distances parallel to principal axis, that is F, V and U, are towards left hand side are taken as negative, and all the distance parallel to principal axis towards right hand side, are taken as positive. इस बात को डायग्राम से समझेंगे. नंबर 4, all the distances above the principal axis are taken as positive, and all the distances below the principal axis are taken as negative. ये 4 रूल्स हैं. साइन कन्वेंशंस आर बेसिकली द रूल्स जो हमको बताते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय फिज़िकल क्वांटिटीज़ के सामने, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमको गिवन होगी, उनके सामने हम प्लस या माइनस क्या साइन लगाएं, सिर्फ इतनी सी बात है. तो हम इनकी बात समझते हैं डायग्राम से. समझो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है. साइन कन्वेंशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक तो है F, इसमें यहाँ और इसमें यहाँ. ठीक है. डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक तो है फोकल लेंथ, दूसरा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है. जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ, यहाँ रखा है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हमने क्या बोला सबसे पहले तो कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम P. हाँ,
एक तो जैसे यहाँ पे ये रखा है हमने, इधर समझो इमेज बन गई, तो इमेज डिस्टेंस v, इधर इमेज जो बनती है वो यही बनती है हमेशा f और p के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये v है, यहाँ पे देखा जाए तो f कहाँ है, दिस इज f, p और f के बीच में फोकल लेंथ, दिस इज इमेज डिस्टेंस v एंड दिस इज ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इन दोनों के कंटेक्स्ट में देखें, पहली चीज़ वो कह रहे हैं कि जो ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी f, u एंड v, हाँ, f, u एंड v, इन तीनों, ये तीनों जो हैं ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा पोल से नापे जाएंगे, यानी कि u का मेजरमेंट भी इसका p से होगा, इधर ये p से होगा, ऐसे नहीं कहीं से भी कर दिया, पोल से ही नापा जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात बोला कि ऑब्जेक्ट चाहे कोई सा भी मिरर हो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ही रखा जाएगा हमेशा, ठीक है। ये दोनों बातें तो जनरल हो गई। तीसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस f, v एंड u टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड आर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। जैसे इस सिचुएशन में देखो, ऑब्जेक्ट रखा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिखते हैं u यहाँ पे नेगेटिव है, फोकल लेंथ यहाँ पे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो फोकल लेंथ भी, कॉनकेव मिरर होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जबकि यहाँ पर फोकल लेंथ देखो, यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि फोकस जो है वो बिहाइंड द मिरर है, तो मेजरमेंट टुवर्ड द राइट हैंड साइड करना पड़ा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी है, तो जहाँ f होगा वहीं तक की नापोगे, p और f के बीच का डिस्टेंस ही तो फोकल लेंथ होता है, तो वही किया हमने, तो पॉजिटिव आएगा। टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड आर टेकन एज पॉजिटिव। अब देख लो कि u हमेशा नेगेटिव है, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे v भी नेगेटिव है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन एक केस ऐसा भी है जब इमेज यहाँ बन गई थी, उस केस में v पॉजिटिव होगा, इस केस में v नेगेटिव होगा। f हमेशा नेगेटिव ही होता है कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में v हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑप्टिकल सेंटर से f की तरफ मेजरमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एक तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ऑब्जेक्ट को तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखना पड़ेगा। इमेज जो है वो कभी ऐसी बन सकती है और कभी ऐसी बन सकती है, तो ये भी h डैश है, ये भी h डैश है। इस केस में h डैश जो है वो पॉजिटिव है, इस केस में h डैश जो है वो नेगेटिव है। सो इट ऑल डिपेंड्स वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन फॉर इमेजेस। लेकिन ये बात तो हम समझते हैं ना वैसे भी, कि h डैश जो है वो इमेज की हाइट को कहते हैं, वहाँ पर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इन सब बातों को एक टेबल में लिख लेते हैं, जो साइन कन्वेंशन में हमने सीखा है उसकी एक टेबल बना रहे हैं हम। इस टेबल में हम दोनों तरह के मिरर्स की बात करेंगे और उनके लिए यूज़ किए गए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के साइन लिखेंगे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर्स। अब मिरर है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स।
कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो मिरर हमको यहाँ पे पता चल रहे हैं। है ना, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने देखना है कि उनके साइंस जो होंगे वो किस तरह के होंगे। F, V, U, H डैश एंड H। यहाँ पे लिख देते हैं हम लिख देते हैं F, V, U, H डैश एंड H। तो कॉनकेव में देखें F टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसलिए F इज़ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में F इज़ पॉजिटिव क्योंकि एपरेंट इंटरसेक्शन बिहाइंड द मिरर होता है। यहाँ पे U और H इनके बारे में कोई टेंशन नहीं करनी। U दोनों में पहले से ही नेगेटिव नेगेटिव लिख दो, क्योंकि साइन कन्वेंशन कहता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ही रखा जाएगा। और दूसरा H, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज़ ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड एनीथिंग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है। V देखें यानी इमेज डिस्टेंस। कॉनकेव में 5 केसेस में रियल इमेज बनती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इन 5 केसेस। कौन से 5 केसेस? वो 5 केसेस जिनमें जो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर कि इमेज जो होती है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनती है, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। केवल एक केस ऐसा होता है वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी जो ये हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है, वन केस ऐसा होगा जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी नहीं बन पाएगी, यानी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन पाएगी, और वो कैसी होती है? पॉजिटिव। तो हम कहते हैं कि कॉनकेव में पॉजिटिव इन 1 केस और नेगेटिव इन 5 केसेस। कॉन्वेक्स में तो कितने भी केसेस हों वो बनती हमेशा कॉन्वेक्स में, क्योंकि पीछे की तरफ इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ऐसे ही हाइट की भी बात करें कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, और इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यानी नेगेटिव इन 5 केसेस, और पॉजिटिव केवल एक ही बार जब वर्चुअल बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन F एंड P, पॉजिटिव इन 1 केस। कॉन्वेक्स में क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, रियल इमेज वो कभी बना ही नहीं सकता, तो इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। इसे एट अ ग्लांस आप देखो इस टेबल को, तो आपको पता चलेगा कि कॉन्वेक्स में U को छोड़ के जो इन एनी केस नेगेटिव ही रहता है, साइन कन्वेंशन है वो, तो कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U हमेशा नेगेटिव रहता है। इसे छोड़ करके बाकी हर चीज़ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स में नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर आपका कभी आंसर कॉन्वेक्स मिरर का कुछ आप न्यूमेरिकल कर रहे हो और आंसर आपका नेगेटिव आ गया है, हाँ, U को छोड़ के कुछ और चीज़ नेगेटिव आ गई है, तो समझ जाओ आपने गलत किया है, फॉर्मूला गलत लगा दिया होगा, -v/u की बजाय +v/u लिख दिया होगा, कुछ भी हो सकता है ना। गलती आप कोई सी भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है तो मान लो आपने गलती की है और आपको दोबारा से इसे करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला, with the help of formula for magnification, and with the help of sign conventions, most importantly with the help of this table, we will try to solve numericals in tomorrow's class. ठीक है, तब तक आप जो ऑलरेडी आपकी बुक में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पहले आपने किया हुआ है एक बार, अब एक बार फिर से कर लो, है ना। हम कल बात करेंगे विथ सम न्यू न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।